Okay, Hare Krishna. So Adi Lila, chapter 13, Advent of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So let's start from verse 1. हम बंगाली भी रिसाइट करेंगे और वर्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि जैसे मैं पहले 3 पढ़ लेती हूँ, ठीक है? फिर टर्न्स ले लेके पढ़ते रहेंगे. So text 1. Sa prasi up, and please feel free to chant together the verses. Sa prasidatu Chaitanya देवो यस्य प्रसादता तल्लीला वर्णने योग्या सद्या स्याद् अधमोऽप्ययम्. I wish the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even one who is fallen can describe the pastimes of the Lord. Purport. To describe Sri Chaitanya Mahaprabhu or Lord Sri Krishna, one needs supernatural power, which is the grace and mercy of the Lord. Without his grace and mercy, one cannot compose transcendental literature. By dint of the grace of the Lord, however, even one who is unfit for a literary career can describe wonderful transcendental topics. Description of Krishna is possible for one who is empowered. Krishna Shakti Vena Nahi Tara Pravartana. CC Ante Lila 7.11. Unless endowed with the mercy of the Lord, one cannot preach of the Lord's name, fame, qualities, form, entourage, and so on. It should be concluded, therefore, that the writing of Sri Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami manifests specific mercy bestowed upon the author, although he thought of himself as the most fallen. We should not consider him fallen because he describes himself as such. Rather, anyone who is able to compose such transcendental literature is our esteemed master. तो आगे की इसमें परपोर्ट नहीं दिया प्रभुपाद ने, सिर्फ इसमें दिया. So I'll just discuss this a little, then please share your thoughts. So Krishnadas, as you know, we should know the name of the author. This was written by Krishnadas Kaviraj Goswami, and he wrote it at a very old age. मतलब वो 90 plus years के थे, 90 something थे वो जब उन्होंने लिखा था. और किसी को पता है कि उन्होंने किसकी क्लासेस सुनते थे वो before writing Chaitanya Charitamrita? Whose classes did he used to sit in to write the Chaitanya Charitamrita? He used to listen to the classes of रघुनाथ दास गोस्वामी. ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड पे बैठ के क्लास करते थे तो वो सुनते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी. एंड देन ही वाज देन ऑल द सारे जितने भी गोस्वामी थे और सारे जो वैष्णव थे वहां के, उन्होंने कृष्णदास कविराज को बोला कि आप ये चैतन्य लीलाएं लिखो. तो उससे पहले ऑलरेडी चैतन्य भागवत लिखी जा चुकी थी बाय क्या नाम है उनका, वृंदावन दास ठाकुर. तो उन्होंने लिख चुके थे वो, लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज को बोला कि आप जो पार्ट उन्होंने नहीं लिखा वो आप लिखो. तो उन्होंने फिर वो लिखा था. तो दिस इज कृष्णदास कविराज गोस्वामी. वो ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी से, ग्रेस से, दया से ही उनके बारे में उनका गुणगान किया जा सकता है. If somebody, even a fallen person, can describe his name, fame, glories, pastimes, if they have his mercy. But somebody who does not have his mercy may be very, very intelligent, may be very, very qualified. वो उनका नाम गान, रूप लीला का गुणगान नहीं कर पाएगा. तो ये बताया. और प्रभुपाद ने ये कोट किया है, कृष्णा शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन. तो जो एम्पावर्ड होगा, जिसमें ये सारी, जिसको भगवान ने पावर दी होगी, मर्सी दी होगी, दया दी होगी, वही उनका नाम रूप गुण लीला का व्याख्यान या गुणगान कर पाएगा, कीर्तन कर पाएगा. तो जैसे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद को इसलिए हम बोलते हैं एम्पावर्ड आचार्य, क्योंकि वो उनके ऊपर भी ऐसे उनकी भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया दिखती है. पर then in the end Prabhupada is saying we should not consider him fallen. वो अपने आप को fallen बोल सकते हैं, लेकिन हम उनको fallen नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको ये सारा ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर मिला है और महाप्रभु की लीलाएं मिली है, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य, उनकी सारी जगन्नाथपुरी की और साउथ इंडिया की यात्रा, और
बंगाल में कैसे उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया, सब हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी से पता चला है, तो हम उनको फॉलन नहीं बोलेंगे। तो डिवोटी अपने आप को फॉलन बोल सकता है कोई, लेकिन हमें डिवोटी को फॉलन नहीं बोलना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एटिकेट। ओके, आई विल रीड 2 मोर। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंदा। All glories to Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Advaita Chandra. All glories to Lord Nityanand Prabhu. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको एक तरह से सबका जयकार कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं सबको बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट महाप्रभु। सो वो बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, अद्वैत चंद्र की एंड कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ऑफकोर्स। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंदा वासुदेव, जय हरिदास। All glories to Gadadhar Prabhu, all glories to Srivas Thakur, all glories to Mukund Prabhu and Vasudev Prabhu, all glories to Haridas Thakur. तो बाकी के जो एसोसिएट्स हैं गदाधर पंडित एंड श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, उनको बोल रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे उनके जैसे मुकुंद दत्त, जो मुकुंद प्रभु बोल रहे हैं, दिस इज मुकुंद दत्त एंड वासुदेव घोष, ये सब एसोसिएट्स हैं महाप्रभु के, एंड ऑफ कोर्स हरिदास ठाकुर। सो यहाँ पे 5 लोगों को जयकारा करें, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, मुकुंद दत्त एंड वासुदेव घोष। So let's I think this is very clear, he's just glorifying them and he's calling himself very fallen. So before we go on further, let me ask Rekha Mataji. Mataji, can you name the Panch Tattvas? Yeah, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura भक्तवृंदा। तो ये 5 लोग कौन, इसमें 5 लोग कौन कौन है? तो इसमें एक है चैतन्य महाप्रभु, एक है नित्यानंद, अद्वैत गदाधर पंडित एंड वो वासुदेव श्रीवास पंडित, यस, श्रीवास पंडित एंड बोल दिया आपने 5? हाँ बोल दिया, ठीक है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु तो कृष्णा है ना जी। नित्यानंद प्रभु बलराम है, बलराम। अद्वैत आचार्य कौन है? पंचतत्व की फोटो माता जी, महाविष्णु। महाविष्णु एंड महाविष्णु एंड सदाशिव की कंबाइंड इनकारनेशन। अच्छा, ठीक है। और वो गदाधर पंडित राधा रानी। यस, गदाधर पंडित राधा रानी एंड श्रीवास पंडित नारद जी। नारद मुनि। सो ही इज द जीव तत्व, है ना। ये पंच तत्व हैं, ये 5 तत्व हैं। तो मैं ये फोटो दिखा रही हूँ आपको। ये दिख रहा, ये तो चैतन्य महाप्रभु हो गए बीच में, है ना, गोल्डन, हाँ। गोल्डन अवतार, गोल्डन कलर, पीताम्बर वेशधारी, है ना। ये जो नीलांबर धारी हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ है? नित्यानंद प्रभु। वैसे भी रिमेम्बर बलराम जी हमेशा राइट साइड में खड़े होते हैं, है ना। हाँ। और लेफ्ट साइड में कौन खड़े होते हैं? राधा रानी। राधा रानी। सो ये हो गए गदाधर पंडित, है ना, ये गदाधर पंडित हाँ। हो गए। और ये जो, क्योंकि इनकी दाढ़ी है, सिर्फ उन्हीं की दाढ़ी है, वैसे हमारे वैष्णव दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन उनकी दाढ़ी होती थी। तो ये कौन हुए? बहुत ओल्ड भी हुए, बहुत बूढ़े भी हुए, महाप्रभु से भी पहले आए हैं, जो बहुत पहले, जिनकी वजह से महाप्रभु आए यहाँ पे। दिस इज अद्वैताचार्य, ठीक है, दिस इज अद्वैताचार्य, दाढ़ी में दिख रहे हैं। और ये श्रीवास पंडित, दिस इज नारद मुनि, ये जीव तत्व, दिस इज श्रीवास पंडित, ठीक है। ये 5 तत्व हैं। तो एक भगवान तत्व है, भगवान तत्व हैं, और बाकी ये सब विष्णु तत्व हैं। बाकी के सब विष्णु तत्व हैं, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, बाकी के सब विष्णु तत्व हैं, सिर्फ नारद मुनि या श्रीवास पंडित इस जीव तत्व। बाकी सदाशिव और विष्णु की कंबाइंड इनकारनेशन है अद्वैताचार्य, तो वो भी विष्णु तत्व हुए। और ये बलराम और गदाधर पंडित, ये तो भगवान ही हुए ना, क्योंकि राधा रानी और बलराम हैं, तो ये भगवत तत्व हुआ, भगवान हुए, विष्णु तत्व। और ये श्रीवासादि, ये कौन से तत्व हुए?
श्रीवास आदि इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्रीवास इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिवोटी, सो ही इज जीवा, डिवोटीज आर जीवा। जीवा। ओके तो विष्णु तत्व होता है, जीव तत्व होता है, तो ये हुए जीव तत्व, बाकी सब विष्णु तत्व। तो पांच तत्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरह से एक भगवान है, एक भगवान की एनर्जी है, एक भगवान के एक्सपेंशन है जैसे बलराम जी, एक ये सदाशिव महाविष्णु जो है अम, वो भी एक तरह से इनकारनेशन या एक्सपेंशन ही है भगवान की, ठीक है। ओके। और एक जो गदाधर पंडित हैं वो भगवान की डिवोशनल पोटेंसी या एनर्जी है, और जो शिवास पंडित हैं वो डिवोटी है, प्योर डिवोटी। तो ऐसे बोलते हैं एक भगवान है, एक भगवान की एक्सपेंशन है, एक भगवान की इनकारनेशन है, एक प्योर डिवोटी है, और एक डिवोशनल एनर्जी है। ऐसे पांच तत्व ये होते हैं। ओके। ठीक है, तो भगवान की इनकारनेशन मतलब वो चैतन्य महाप्रभु हो गए, राइट? भगवान खुद हुए, चैतन्य महाप्रभु इज वो लॉर्ड भगवान हिमसेल्फ। खुद, तो भगवान उनका की एक्सपेंशन हो गए लॉर्ड बलराम, ही द फर्स्ट एक्सपेंशन, सो नित्यानंद प्रभु। इनकारनेशन हो गए जो महाविष्णु एंड सदाशिव द्वैताचार्य। ओके ओके, मेक्स सेंस। डिवोशनल एनर्जी हो गए गदाधर पंडित, एंड डिवोटी हो गए श्रीवास पंडित। तो बाकी के जो एसोसिएट्स हैं उनका अगर अभी नाम नहीं पता, जैसे मुकुंद दत्त के बोल रहे हैं या वासुदेव घोष, वो अभी हमें धीरे धीरे जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते रहेंगे और महाप्रभु की लीला सुनते रहेंगे तो आगे समझ आते रहेंगे, याद होने लग जाएंगे। ओके। चलिए अब आगे कोई पढ़ेगा? इसका आपको ट्यून पता चल गई ना, ऐसे बंगाली वर्सेस को रिसाइट करने की, है ना? हाँ, आपको मैं ट्राई पढ़ करना सकती। है? Sure. हाँ। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्ता एल सब चंद्रो दये तमक कैला लुप्ता। All glories to Swarupa Damodara and Murari Gupta. All these brilliant moons have together dissipated the darkness of this material world. तो ये स्वरूप दामोदर ये सब वो उनके साथ। यस माता जी, जब कृष्णदास कविराज ने वो लिखी थी ना चैतन्य चरितमृत, हाँ तो हाँ ही हैड एक्सेस टू द डायरी ऑफ मुरारी गुप्ता, जो मुरारी गुप्ता का जर्नल था। मुरारी गुप्ता इज, अब मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मुरारी गुप्ता इज कंसिडर्ड हनुमान जी इन गौड़ लीला, एंड स्वरूप दामोदर दास इज ललिता सखी। ओके, ललिता सखी। पर नहीं याद हो रहा तो मतलब इतना नहीं सोचने की, जस्ट नो कि देयर इज ऑल दीज, ऑल द जो कृष्ण लीला में या राम लीला में आते हैं लोग, वो इसमें भी आते हैं, बस जस्ट रिमेम्बर दैट। तो मुरारी गुप्ता की डायरी थी, वो उस डायरी में से आई थिंक स्वरूप दामोदर दास का भी कुछ डायरी या लिटरेचर था, ये दोनों की जो डायरीज थी उसमें से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सारा मटेरियल लेके लिखा था, एंड रघुनाथ दास गोस्वामी की क्लासेस में बैठ के जो उन्होंने सुना था। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो माता जी जो हनुमान जी हैं वो शिव की इनकारनेशन है ना, शिव भगवान के? हाँ ऐसा ही बोलते हैं, या शिव जी की एक्सपेंशन बोलते हैं। शिव तत्व और रुद्र तत्व, शिव तत्व इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, आप आगे पढ़ोगे? हाँ माता जी। जय श्री चैतन्य चंद्रेरा भक्त चंद्र गान सबार प्रेम ज्योत सनाया उज्ज्वल त्रिभुवन। Sorry, I didn't read this correctly. All glories to the moons who are devotees of the principal moon, Lord Chaitanya Chandra. Their bright moonshine illuminates the entire universe. Purport. In this verse, we find the moon described as Chandragana, which is plural in number. This indicates there are many moons. In Bhagavad Gita 10:21,
Lord says, Nak, nak, Nakshatra-nam. Nakshatranam aham sashi. Among the stars, I am the moon. All the stars are like the moon. Western astronomers consider the stars to be sun, but Vedic astronomers following the Vedic scriptures consider them moon. The sun has ability to shine powerfully, and the moon reflects the sunshine and therefore look brilliant. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna is described to be like the sun. The supreme powerful is the supreme personality of Godhead Sri Krishna or Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and his devotees are also bright and illuminating because they reflect the supreme sun. The Chaitanya Charita Amrit Madhya 22.31 states. So it says that, oh, it's still there. Okay. Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara Yaha Krishna Taha Nahi Maya Ra Adhikara. Krishna is bright like sun. As soon as the sun appears, there is no question of darkness or night. Similarly, present verse also describes that by illumination of all the moons, brightened by the reflection of Krishna's sun, or by the grace of all devotees of Chaitanya Mahaprabhu, the entire world will be illuminated despite the darkness of Kali Yuga. Only the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu can dissipate the darkness of Kali Yuga, the ignorance of the population of this age. No one else can do so. We can therefore wish that all the devotees of Krishna consciousness movement may reflect the Supreme Sun and thus dissipate the darkness of the entire world. Paul, you want to share? Well, this is what I understand, that Krishna is the main powerful source of light, and his devotees are moon or the stars. They get illuminated by the reflection of the sun, or it brightens the star with the help of the sun. Similarly, in the Kali Yuga, the darkness can be dissipated with the help of pure devotees of Sri Krishna or Chaitanya Mahaprabhu by spreading the Sankirtan movement and slowly purifying neophytes or whoever gets the mercy of Lord Krishna, is what I understand. Yes, Mataji. So basically, he is the principal moon. He's Gaur Chandra, या Chaitanya Chandra, या हम बोलते हैं ना वृंदावन Chandra, है ना? So Yes, and he can illuminate the entire universe. So he's the source of light, like you said. He's the principal source of light, principal celestial body, basically. And everybody else is just reflecting the light that they got from him. So if a devotee shines, let's say Prabhupada is shining, or any other acharyas in disciplic succession, Krishnadas Kaviraj Goswami and other acharyas, when they spread the knowledge, they spread this Sankirtan movement, the devotional service, they do so by the empowerment from Krishna, by the main source of everything, main source of power, main source of light, main source of energy. So Prabhupada is praying that may all of us also become that source of light. We may also get some light from Krishna and be able to spread it into the entire world. So we can dissipate the darkness of the entire world by reflecting the light from Supreme Sun. तो ये बहुत ही फेमस वर्स है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकारा, जहां कृष्णा तहां नहीं माया राधिकारा. ये काफी फेमसली कोटेड होती है कि जब कृष्णा है तो कोई अंधकार या माया नहीं हो सकती, माया का अधिकार नहीं हो सकता वहां पे. ओके, एक और पढ़ लीजिए आप, फिर कोई और पढ़ लेगा. एते कहिला ग्रंथ हरम पे
Mukhabada Ebikahi Chaitanya Lila Krama Anubandha. Thus I have spoken the precepts of Chaitanya Charitamrita. Now I should describe Chaitanya Mahaprabhu's pastime in chronological order. Hare Krishna. Hare Krishna. So I think we have basically skipped the preface. So Krishna Das himself is saying that I have spoken the preface. So preface is like an introduction or sort of what to expect in the book. So he has described that so far, and now he will go into the Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in chronological order. मतलब बचपन की बाल लीला, फिर पौगंड लीला, फिर किशोर लीला, फिर उनका सन्यास, फिर सन्यास के बाद पुरी में जाना, फिर उसके बाद साउथ इंडिया की यात्रा पे जाना, फिर उसके बाद संकीर्तन मूवमेंट कैसे फैली, और फिर वो पुरी में वापस आ गए, कन्फाइंड हो गए, लाइक ऑल दैट, वो सारा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताएंगे अब। ये लिखा है ग्रंथारंभे, कि मैंने ग्रंथ के आरंभ में। तो माता जी मैं पहले भी देख रही थी, जब भी कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो कंबाइंड होते हैं संस्कृत में, तो उसको एक फ्लो में पढ़ते हैं, जैसे कि चरित, ऐसे नहीं कि चरित अमृत, नहीं, इट्स चरितामृता, ठीक है, चरितामृता, क्योंकि चरित प्लस अमृत को मिक्स करके बना है चरितामृत। सो चैतन्य चरितामृत, ऐसे ये बना है ग्रंथ प्लस आरंभे, सो ग्रंथारंभ, ग्रंथारंभे। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं उसको। चलिए आगे कोई पढ़ेगा? I can read, Mataji. यस मैम। Text 7. प्रथमेता सूत्रे रूप करिये गणना पाचनेताः विस्तरी करिबे विवरणा. Translation. First, let me give a synopsis of the Lord's pastimes, then I shall describe them in detail. Text 8. Shri Krishna Chaitanya Navadvipe Avatari Ata Chalisha Vatsara Prakata Vihari. Translation. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, adventing himself in Navadvipa, was visible for 48 years, enjoying his pastimes. Text 9. 14 shata shake janmera pramana 14 shata panchanne ha ila antardhana. Translation. In the year 1407 of the Shaka era AD 1486, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, and in the year 1455 AD 1534, he disappeared from this world. Back to you, Mataji. माता जी एक और पढ़ लो कुछ। Text 10. 26 वत्सारा प्रभु कैला ग्रह वासा निरंतर कैला Krishna Kirtana Vilasa. Translation. For 24 years, Lord Chaitanya lived in the Grihastha ashram household life, always engaging in the pastimes of the Hare Krishna movement. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, you want to share anything? Mataji, Krishnadas Kaviraj Goswami, in text 7, he's saying that he will give the synopsis of the Lord's pastime. So basically, he's going to describe them, like concise them and describe it. And then he says that he's going to describe them in detail in the later verses. In text 8, the author is saying that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Navadvipa, and he lived for 48 years. And so all those pastimes will be described. So his birth year was 1407 of the Shaka era. I don't know what the Shaka era exactly means, but I think it's AD 1486. And that was when Chaitanya, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, and then his disappearance year was 1455, Shaka era, which is AD 1534.
So, sorry, Mataji. या पता नहीं क्या होता है, कोई कुछ डिवीजन होता होगा वैदिक सिस्टम में जो हमको पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडी ये बनता है 1486. So 48 years के लिए he remained on this material world doing his pastimes, of which 24 years were in the household life. ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं. हाँ, ओके. ये माता जी आप पढ़ोगे आगे? माता जी अभी मैं पढ़ नहीं सकती, मैं सुन रही हूँ. अच्छा, ठीक है. तो लेट्स सी, मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा. 26 वत्सरा शेषे करिया संन्यास, आरा 26 वत्सरा कैला नीला चले वास. After 24 years, he accepted the renounced order of life, sannyas, and he resided for 24 years more at Jagannath Puri. 26 तो हम वैसे 26 को बोलते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से होगा इसका ब्रेकडाउन. आई थिंक 26 माताजी ऐसे लगता है 24 24. 24. अच्छा, नॉट 26. That makes sense. Thank you, Mataji, for clarifying. That's why I'm like, what? 26 क्यों बोल रहे हैं बार बार? Okay, I got it. So we 26 should. ही पढ़ा था शायद हाँ? माताजी, शायद मैंने भी 26 ही पढ़ा था पहले वाले वर्ष में. अच्छा, अच्छा. That's what even I was wondering why it is 24, but it's I think it's Chabisha. Okay, okay, okay. I got it. Okay. 24 वत्सरा शेषे करिया संन्यास, आरा 24 वत्सरा कैला नीला चले वास. After 24 years, he accepted the renounced order of life sannyas, and he resided for 24 years more at Jagannath Puri. तारा मध्ये छाया वत्सरा गमनागमन, कभू दक्षिणा कभू गौड़ा कभू वृंदावन. Of these last 24 years, he spent the first 6 continually touring India, sometimes in South India, sometimes in Bengal, and sometimes in Vrindavan. Gaman Agaman, so कभी इधर उधर जा रहे थे, घूम फिर रहे थे पूरे इंडिया में. अष्टदशा वत्सरा रहिला नीला चले, कृष्णा प्रेमा नामामृते भासाला सकले. For the remaining 18 years, he continuously stayed in Jagannath Puri, chanting the nectarian Hare Krishna Mahamantra. He inundated everyone there in a flood of love of Krishna. So I think ये तो self explanatory है, हमने बात कर ही ली थी पहले. 24 साल हाउस होल्ड लाइफ में थे, उसके बाद संन्यास लिया. संन्यास के बाद so first 24 years जो है वो आदि लीला में आते हैं. नेक्स्ट 6 years जो हैं वो मध्य लीला में आते हैं. दैट टाइम ही वाज टूरिंग इंडिया, सो कभी बंगाल, कभी वृंदावन, कभी साउथ इंडिया. और लास्ट के 18 years जो हैं वो अंत्य लीला में आते हैं, इन विच ही कंटिन्यूअसली स्टेड इन. फिर उसके बाद उनका पूरा मतलब क्षेत्रवास था जगन्नाथपुरी में, एंड ही वाज जस्ट completely absorbed in the love of Krishna, completely absorbed in the Mahamantra. So अनलेस कोई क्वेश्चन हो, आई थिंक ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्सेस हैं, तो वी कैन कीप गोइंग. कोई रियलाइजेशन या क्वेश्चन या कोई वांट टू शेयर समथिंग? ओके, हु वांट्स टू रीड नेक्स्ट? I can try, Mataji. यस मैम. आदि लीला मध्ये प्रभु नहीं, यहाँ से ये वाला. वहाँ से text 15 or 14. oh text 14, sorry. ग्रहस्ते प्रभुरा लीला आदि लीला खयाना मध्य अंतया लीला शेषा लीला Dui Nama. The pastimes of his household life are known as the Adi Leela or the original pastimes. His later pastimes are known as the Madhya Leela and Antya Leela or the middle and the final pastime. So it's just like how you had explained, Mataji, the beginning Leela is called Adi Leela when he was in the household, and when he was
maturing is called Madhya Lila, and then the last 18 years when he was in Jagannath Puri is called Antya Lila. So he did his pastimes over there. Text 15. आदि लीला मध्य प्रभु रायाति के चरिता सूत्र रूपे मुरारी गुप्ता करीला ग्रहीता ग्रतीता. All the pastimes enacted by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Adi Leela were recorded in summary form by Murari Gupta. This is what I was saying before कि मुरारी गुप्ता की डायरी में उन्होंने वो लिखते थे सब कुछ. आदि लीला वाला पोर्शन आई गेस. सो वो उन्होंने वहां से लिखा है, वहां से लिया है, और बाकी का उन्होंने स्वरूप दामोदर दास से लिया था. कृष्णदास कविराज ना पूरा क्रेडिट दे रहे हैं जहां से उन्होंने जो सीखा है ना उसका. हाँ जी, आगे पढ़ लीजिए. तो मध्य लीला उन्होंने वहां से लिया. हाँ, ये भी आगे आएगा, भी आगे आएगा. मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे माता जी? आप पढ़िए. अच्छा. ई दुई जनेरा नहीं, यहाँ से देखिया सुनिया. माता जी ऊपर से. ओ मेरा स्किप हो गया है. हाँ सॉरी. टेक्स्ट 16. प्रभुरा ये शास्त्र लीला स्वरूप दामोदर सूत्रकारी ग्रंथि लेना ग्रंथेरा विचारा. His later pastimes, the Madhya Leela and Antya Leela, were recorded in the form of notes by his secretary Swarupa Damodar Goswami and thus kept within a book. So yes, like you said, Mataji, Swarupa Damodar Goswami had written the Madhya and Antya Leela. So then Krishna Kaviraj was just a compiler, right? He didn't write anything. नहीं, जैसे कि उन्होंने नोट्स लिखे हैं, नॉट ऐसे वर्सेस की फॉर्म में प्रॉपर. जैसे मान लो कि कोई ऐसे शॉर्ट हैंड में नोट्स लिखता है कि जैसे डायरी लिखते हैं ना कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, वहां गए, ऐसे से लिखा है. लेकिन उसको फिर पूरा रसमई बना के वर्सेस में एक्सपैंड करके कंपाइल करना, वो कृष्णदास कविराज ने किया. तो जैसे नोट्स तो हम लेते हैं ना कहीं से, हम कोई भी चीज, कोई पेपर लिखते हैं मान लो, तो मैं कोई पेपर के लिए कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन लिख लूंगी ना. यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है बिकॉज दीज पीपल वर डायरेक्ट एसोसिएट्स ऑफ महाप्रभु मुरारी गुप्ता एंड स्वरूप दामोदर दास, है ना. सो स्वरूप दामोदर दास तो बिल्कुल उनके एंड तक इंटीमेट पास टाइम्स में भी थे. तो याद है हमने उस दिन पढ़ा था कि शिक्षाष्टकम प्रेयर्स वर आल्सो रिसाइटेड टू स्वरूप दामोदर एंड राय रामानंद. So Swarup Damodar used to record all those incidents, all these pastimes in his diary, in his journal, in his notebook. और इसी तरीके से पहले मुरारी गुप्ता लिखते थे उनके जब वो नवद्वीप में उनके एसोसिएट वो ज्यादा रहे होंगे. तो हमें धीरे धीरे मतलब समझ आती जाएंगी चीजें, बस थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रिकॉर्ड करते जाइए क्या हो रहा है. चलिए आगे पढ़ते हैं, if that's okay. शीतल माता जी, want to read next few? Yes, Mataji. Text 17, Mataji. हाँ जी. Text 17. ऐ दुई जनेरा शूद्रा देखिया सुनिया वर्ण न करे न वैष्णवा क्रमे ये करिया. Translation. By seeing and hearing the notes recorded by these two great personalities, a Vaishnava, a devotee of the Lord, can know these pastimes one after another. Text 18. Balyapau Ganda Kishora Yauvana Chari Bheda Atha Eva Adi Khande Lila Chari Bheda. Translation. In his original pastimes, there are 4 divisions: Balya, Pauganda, Kaishora, and Yauvana, childhood, early boyhood, later boyhood, and youth. तो इसमें बस ये याद रख लीजिए, ये डिवीजन हमको पता होनी चाहिए क्योंकि ये कृष्ण लीला में भी ये डिवीजन आती है ना, बाल लीला, पौगंड, किशोर एंड यौवन, है ना. तो 5 साल तक बाल्य लीला होती है,
पौगंड होता है, याद नहीं आ रहा, शायद 8 साल तक होता है पौगंड, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद किशोरा होता है, जब टीनेज अवस्था होती है। आप नहीं, पौगंड स्टिल 10 years। सो बाल लीला स्टिल 5, पौगंड होता है 10 साल तक, उसके बाद किशोर होता है, उसके बाद यौवन मतलब यूथ। ये जो स्टेजेस हैं। ओके, ये माता जी ये जो है ये अपनी भगवत गीता की ट्यून में करोगे? 690 यस। सर्वसद्गुणा पूर्णं ताम वन्दे फल्गुन नहीं नहीं, छोटी पूर्ण ट्यून, छोटी ट्यून। सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, लाइक दैट। सर्वसद्गुणा पूर्णा ताम वन्दे फाल्गुना पूर्णिनाम यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो अवर्तिना कृष्ण नामभि। Translation: I offer my respectful obeisances unto the full moon evening in the month of Falgun, an auspicious time full of auspicious symptoms, when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu advented himself with the chanting of the holy name Hare Krishna. एक और पढ़ लो माता जी। Text 20. फाल्गुन पूर्णिमा संध्याया प्रभुराजन्मोदया सई काले दैव योगे चंद्र ग्रहणाया. Translation: On the full moon evening of the month of Falgun, when the Lord took birth, coincidentally there was also a lunar eclipse. I was just looking up the breakdown. So बाल्या को कौमार भी बोलते हैं। बाल्या या कौमार is up to 5 years. 5 to 10 years is Poganda. 10 to 16 is Keshora, and after 16 is Yauvan. Okay, Mataji, you want to share anything? Kaviraj Krishnadas Kaviraj Goswami is offering his respectful obeisances unto the full moon evening in the month of Falgun. So even to the evening of Purnima of Falgun, when this was the auspicious time and which was full of auspicious symptoms, because Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu advented himself with the chanting of holy name Hare Krishna. मदर जी ये लास्ट वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. I can hear that before. हाँ, सो अभी जैसे गौर पूर्णिमा आ रही है ना, सो पूर्णिमा के दिन महाप्रभु आए थे, सो फुल मून इवनिंग, इसलिए हम मून राइज पे मून राइज तक फास्टिंग करते हैं। टिपिकली जिस टाइम पे विष्णु तत्व का अपीयरेंस होता है ना, जैसे जन्माष्टमी पे मिडनाइट में करते हैं क्योंकि भगवान मिडनाइट में आए थे, उसे तब तक फास्टिंग की जाती है। इसलिए गौर पूर्णिमा पे मून राइज में आए थे, ऑस्पिशियस टाइम ऑफ फुल ऑफ ऑस्पिशियस सिम्टम्स। तो ठीक है, ये तो बात आ गई। और ये फाल्गुन का मंथ है। On the full moon evening of the month of Falgun, when Lord took birth, coincidentally, हाँ, okay, तो माता जी बड़ी फेमस बात है कि जिस दिन भगवान आए थे उस दिन लूनर एक्लिप्स था। ठीक है, तो आपको पता है एक्लिप्स को अशुभ माना जाता है ना वैदिक कल्चर में, लेकिन क्योंकि भगवान आ रहे थे, क्योंकि महाप्रभु आ रहे थे, दैट मेड इट वेरी ऑस्पिशियस। तो क्या हुआ था, क्योंकि एक्लिप्स था, क्योंकि अशुभ था, तो सारे जो ब्राह्मण वगैरह थे वो वहां नवद्वीप में गंगा में खड़े होके भगवान के नाम का जाप कर रहे थे जोर जोर से, बहुत ज्यादा। लेकिन तो उसकी वजह से बहुत ऑस्पिशियसनेस क्रिएट हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि सारे वैष्णव, सारे ब्राह्मण, पंडित, सब लोग वहां पे गंगा जी में जोर जोर से हरि नाम का जाप कर रहे थे, नॉट नोइंग कि भगवान आ रहे हैं, दे वर जस्ट चैंटिंग बिकॉज इट वाज ल्यूनर इक्लिप्स। तो ये सीन बहुत अच्छे से बहुत बार डिवोटीज डिस्क्राइब करते हैं। गौर पूर्णिमा पे ऐसा एक समा बन गया था कि जब महाप्रभु आए तो एक्चुअली कोइंसिडेंटली उस दिन ल्यूनर इक्लिप्स भी था और बहुत ज्यादा हरि नाम की चैंटिंग हो रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट।
और उसके बीच में महाप्रभु का अवतरण हुआ था, एडवेंट हुआ था. इन दिस loud chanting of Harinam was going on. इसका ये सिग्निफिकेंस है कि coincidentally that night there was also lunar eclipse. तो अभी आप आगे भी देखोगे ना. पूनम माता जी, let us know whenever you are available, ठीक है? आपको अपने आप बता देना जब पढ़ना होगा. तो बाकी वो keep going थोड़ा सा और. Let's read till 3, I think 10 more minutes. हरि हरि बले लोका हर्षिता हना जनमिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मया. हाँ, ये आ गया ना. In jubilation, everyone was chanting the holy name of the Lord, Hari Hari. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then appeared after first causing the appearance of the holy name. कि पहले हरि नाम आ गया, फिर वो आए. जन्म बाल्या पौगंडा केशोरा युवा काले हरि नाम लयोला प्रभु नाना चले. At his birth, in his childhood, and in his early and later boyhood, as well as in his youth, Lord Chaitanya Mahaprabhu, under different pleas, induced people to chant the holy name of Hari, the Hare Krishna Mahamantra. तो हर टाइम पे जन्म हुआ, उसके बाद बाल अवस्था में, मतलब कौमार अवस्था में, फिर पौगंड में, है ना, जब 10 साल तक के एज में, फिर और बड़े हो गए किशोर एज 16 इयर्स की एज तक, फिर युवा अवस्था में भी, every time by one way or the other he'll make people chant हरि नाम लाओ आइला लाओला, ये किसी तरीके से भी हरि नाम लाओ. And somehow or the other he will induce people to chant the holy name of Hari. बाल्या भाई वाचले प्रभु करे ना क्रंदन कृष्णा हरि नामा शुनि रहे रोदन. In his childhood, when the Lord was crying, he would stop immediately upon hearing the holy names Krishna and Hari. तो रोते थे, तो उसका इलाज ये था कि उनको होली नेम सुन के चुप हो जाते थे. कृष्णा का या हरि का नाम सुन के, हाँ, he would stop crying in his childhood, बाल्यावस्था में छोटे थे. अतेवा हरि हरि बले नारीगण देखीते आई से ये बा सर्वा बंधुजन. All the friendly ladies who came to see the child would chant the holy names Hari Hari as soon as the child would cry. तो सबको पता चल गया होगा, ये टेंडेंसी है इनकी महाप्रभु की. और निमाय बोलेंगे हम, क्योंकि अभी तो छोटे थे, तो अभी तो निमाय बोलते थे ना सब. Also another thing about Mahaprabhu is that he was born under the neem tree. So इसलिए उनको निमाय बोलते थे. तो जो लिटिल निमाय थे, उनको हरी हरी बोल के लोग चुप कराते थे. जो नारीगण, मतलब जब लेडीज आती थी पड़ोस की मिलने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, तो हरी हरी बोल के बच्चे को चुप कराती थी इस तरह से. Okay, anyone wants to read the next few? Yes, Mataji. Okay, I can read. go ahead. गौरा हरि बालिता रे हसे सर्वा नारी अतव हेला तनरा नाम गौरा हरि. When all the ladies saw this fun, they enjoyed laughing and called the Lord Gaur Hari. From then on, Gaur Hari became another of his name. बाल्यावयसा यावत् हाते काळी दिला पोगांडा वयासा यावत् विवाह न केला. Childhood latest until the date of Hatte Kadi, the beginning of his education, and his age from the end of his childhood until he married is called Pogada. Means इसका मीन समझ नहीं आया माता जी. हाँ, तो पहला तो आ गया ना इसमें, जब सभी लेडीज ये फन देखती थी. फन मतलब यही कि वो हरी बोलने से चुप हो जाते हैं, तो वो हंसते थे, और उनका नाम ही उन्होंने गौर हरी रख दिया था. तो गौर हरी बिकेम अनदर ऑफ हिज नेम्स. तो एक नाम हो गया निमाय, एक हो गया गौर हरी,
एक हो गया जो सबसे कॉमन, जो उनके माता पिता ने उनको नाम दिया था, विश्वाम्भर, है ना, विश्वाम्भर। और फिर आगे बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था या जो चाइल्डहुड है, कौमार अवस्था, लास्टेड अंटिल द डेट ऑफ हाथे खड़ी। हाथे खड़ी में देख रही थी, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सेरेमनी, बंगाली सेरेमनी, यूजली ड्यूरिंग सरस्वती पूजा करते हैं, जिसमें एजुकेशन, बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन की, बच्चे को पढ़ाना लिखाना इस सेरेमनी के बाद शुरू करते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन है हिंदुइज्म का, विच इज फॉलोड इन टिपिकली इन बंगाल, जिसमें सरस्वती पूजा के टाइम पे एजुकेशन शुरू की जाती है, जैसे स्कूल भेजते हैं, जो भी पढ़ाई करवाते हैं। तो ये इनकी बेसिकली पॉगंड शुरू हो गया, मतलब 5 साल से बड़े हो गए। हिज एज फ्रॉम द एंड ऑफ हिज चाइल्डहुड अंटिल ही मैरिड इज कॉल्ड पॉगंड। तो मैरिज भी इसका मतलब बहुत जल्दी हो गई होगी। आगे पढ़ेंगे माता जी, 2-3 और। आप ही पढ़िए माता जी, मुझे थोड़ा टफ सा लग रहा है। क्यों? आप पढ़ोगे नहीं तो टफ लगता ही रहेगा, अगर पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। हम्म, पर टफ क्या चीज टफ लग रही है? बंगाली तो सभी के लिए टफ है, इंग्लिश बस एक एक लाइन ही पढ़ना है। ओके माता जी, मैं ट्राई करूंगी। विवाह करिले हायले नवीना यौवना सर्वत्र सर्वत्र लयो इला प्रभु नाम संकीर्तना। Translation: After his marriage, his youth began, and in his youth, he induced everyone to chant the Hare Krishna Mahamantra anywhere and everywhere. ठीक है, ये तो सिंपल बात है ना। शादी हो गई, उसके बाद उनका यूथ का टाइम शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली पता नहीं, ये नहीं बताया कि शादी कब हुई। बीच में किशोर अवस्था नहीं बताई है, यूथ पॉगंड के बाद सीधा यूथ ही बताया है। फिर यूथ शुरू होता है 16 साल से, तो शायद 16 साल के बाद शादी हुई होगी। उसके बाद उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र सबको देना शुरू कर दिया यूथ के बाद, मतलब मोस्ट लाइकली 16 साल के बाद ही लग रहा है। हम्म। हम्म। पौगंडा वयासे पंडेना पढ़ना शिष्य गणा सर्वत्र करेने कृष्ण नामेर व्याख्याना। Translation: During his Paganda age, he became a serious student and also taught disciplines. In this way, he used to explain the holy name of Krishna everywhere. ठीक है, ये भी ठीक है ना। पौगंड हो गया जब उनका 10 साल, 6 से 10 साल की उम्र में, तो वो काफी सीरियस स्टूडेंट थे। ही वुड टीच। तो शुरू शुरू में महाप्रभु का ये पता होना चाहिए कि महाप्रभु बहुत ज्यादा बड़े स्कॉलर थे, उनका ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्ट था इनिशियली। तो Hmm. दिस इज सो बिफोर ही मैनिफेस्टेड द संकीर्तन मूवमेंट, बिफोर द एडवेंट ऑफ संकीर्तन मूवमेंट, उन्होंने ज्ञान की तरफ ज्यादा अपना रुझान दिखाया था। लाइक ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव, जैसे होता है ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करना संस्कृत में लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, हराना लोगों को, डिबेट करना, जैसे स्कॉलरली एक्टिविटीज होती है ना, जिससे आपकी इंटेलिजेंस डिपिक्ट होती है बहुत ज्यादा। जो महान इस तरीके के ज्ञानी फिलोसोफर स्कॉलर्स टाइप होते हैं, वो ऐसे करते हैं। इस तरीके से थे वो शुरू में, तो बहुत सीरियस स्टूडेंट थे, बहुत, और सिखाते भी थे, taught the disciples, but he also used to explain the holy name of Krishna everywhere. Hmm. चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कोई पढ़ेगा आगे? I can read माता जी। यस So, Mataji, so see, Mahaprabhu, he did get married. यस माता जी, he did get married. तो आएगा उनका, आएगा आई एम श्योर आगे। वो अपनी वाइफ को कैसे फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा था। विष्णु प्रिया थी उनकी वाइफ का नाम। सो माता जी, आपको याद है कि, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, जब हम यात्रा पे गए थे, तो एक धामेश्वर महाप्रभु की डेटी लेके चलती थी गुरु माँ, हाँ हाँ है ना। तो हाँ, वो जिनके दोनों हाथ ऊपर नहीं है, दोनों हाथ महाप्रभु के टिपिकली ऊपर रहते हैं ना, उनके दोनों हाथ सामने थे। right, वो हाँ, डीटी जो है वो विष्णु प्रिया की डीटी थी। वो जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था,
तो उन्होंने अपनी हाँ वाइफ के लिए वो डीटी छोड़ के गए थे। उसमें उनके पूरे फुल हेयर हैं। इफ यू सी टिपिकली गौरांगा के पूरे ऐसे बाल नहीं होते हैं ना, हाथ ऊपर होते हैं, संन्यास वेश में रखते हैं। हाँ लेकिन वो एक अलग ही तरीके की फॉर्म है भगवान की, जो उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए दी थी कि इसको ओके तुम पूरी लाइफ सर्व कर सकती हो। ओके तो विष्णु प्रिया माता जी इतनी ज्यादा वो एडवांस्ड वंडरफुल अमेजिंग डिवोटी थी, उनको इतना ज्यादा अटैचमेंट थी हरि नाम के लिए। वो दिन में पता है खाना कैसे खाती थी? वो एक हरे कृष्णा महामंत्र का बोलती थी तो एक दाना राइस का खाती थी। वाओ एक पूरा हरे कृष्णा महामंत्र बोलती थी, फिर एक दाना खाती थी। तो उनकी और उनके सैक्रिफाइस, उनका और महाप्रभु की मदर एंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे ना, ये तीनों हाँ लोग। तो मदर और वाइफ दोनों को छोड़ के उनको संन्यास लेना पड़ा था। एंड महाप्रभु डिड नॉट वांट टू टेक संन्यास, बट आएगा इसमें ही कि क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से ही हैड टू टेक संन्यास in order to spread the Hare Krishna Sankirtan everywhere in the world, and to spread, to establish etiquettes and culture, proper conduct, proper, um, you know, mood of devotional service. नहीं तो लोग बहुत ज्यादा भटक गए थे। हाँ जो सन्यासी लोग थे उनका कॉन्डक्ट खराब था, ब्राह्मण लोग ठीक से सिखा नहीं रहे थे, कोई शिक्षा नहीं दे रहा था ठीक से। तो there were many reasons why Mahaprabhu took sannyas. ओके So similar to, you can say, Prabhupada. Like Prabhupada did not want to take sannyas, but he had to, because of the need of the time. There was need. और लोग क्या होता है, दुनिया के लोग कई बार um, आपकी preaching को मानेंगे नहीं unless you are like a sannyasi, or you are in the saffron, है ना? ओके या So दैट्स ट्रू people go by externals. So you have to have a sannyas ashram, sannyasi name, and then you will get all the respect. And when you get the respect, the regard, only then people will hear from you and your राइट preaching is effective. So that is part of the reason why he had to do that, to be actually forceful in this world, to be actually heard, you know. कई बार थोड़ा एक्सटर्नल्स करने पड़ते हैं। जैसे आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे जिसकी डिग्री नहीं हो, राइट? राइट तो दुनिया में ये जरूरी है कि एक्सटर्नल्स भी जरूरी हैं, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। सो दैट वाज पार्ट ऑफ द रीजन। ओके ओके ये एक पढ़ना है या स्टॉप करें? इट्स ऑलरेडी 3 o'clock। माता जी स्टॉप करते हैं प्लीज। ठीक है, हाँ, इट्स फाइन। Yeah, let's stop here. But yeah, every time we can read a few verses, and next time I think we'll be even able to go faster. ओके माता जी। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई डोंट नो कि हम कब कब रीड कर पाएंगे, बट आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट एटलीस्ट। ओके So this one right now we were reading, was this Adi Lila? यस माता जी, आदि लीला चैप्टर 13 से हमने शुरू किया, जस्ट लाइक दैट। Okay, आदि यू डोंट हैव चैतन्य चरितमृत, राइट? आपके पास नहीं है ना? नहीं माता जी, वो एक्चुअली मैं कैलिफोर्निया में गई थी ना, तो एक प्रभु जी ने मेरे को वाव, वो जो इस्कॉन मंदिर में गई थी, तो उन्होंने मेरे को ना he made me take a vow that I'm going to one day call him and buy the Chaitanya Charitamrita and send him $100. I ओके said ओके, okay, मैं अभी तक भूल गई। श्योर, ठीक है, आप ले लो फिर। हाँ चलिए अभी ठीक है, हाँ ठीक है, विल स्टॉप हियर, और फिर देखते हैं कब टाइम मिलेगा, वी कैन ट्राई अगेन सम अदर टाइम। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।